कल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की। जी हाँ, C3 ऑन एयर की आज शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे दो प्यारे सुंदर से खूबसूरत से मेहमान, जो मैं स्वागत करती हूँ भव्या और राधिशा का C3 ऑन एयर में। इस C3 ऑन एयर के प्रोग्राम में आप दोनों का ही बहुत तहे दिल से स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मेहमान हमारे दर्शकों को अपने आप ही इंट्रोड्यूस करें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। भव्या, आप क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में? So hi, this is Bhavya Sharma. So I basically work as a software engineer in TCS. Apart from that, यहाँ पे if you all know लखनऊ में there is a 100-year-old business, textile business, Devedi Sarees. So I run that business along with my family. उसके अलावा I'm a part of a wellness community. And I help people shape and transform their lives. And also, I have one more cherished role. I'm a mother to a 4-year-old son. So that is what all I have as of now. And C3, and I've become a part of this C3 family as a part of my, as I'm into wellness and all. So I've become a part of this family, and it's been almost an year now. So thank you for having us. Thank you for having me. And It's my pleasure, भव्या। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि although I'm not an anchor, लेकिन तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना। और तभी मुझे लगा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहिए ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन, ये मोटिवेशन या ये इंस्पिरेशन हमारे दर्शकों तक भी बिल्कुल पहुंचना चाहिए, है ना। तो इसी कड़ी में मैं आपका भी अब स्वागत करना चाहूँगी। राधिशा, एक तो बहुत खूबसूरत सा नाम है आपका, उसके आगे अखिल भी लिखा हुआ है, तो मैं उसके बारे में पहले जानना चाहूँगी। प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए, देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, thank you for having us, to be honest. And so basically, my name is Radhisha. Basically, it's a combination of Radha and Sham, which my grandmother gave it to me. And Akhil is my father name. Oh, So nice. I believe that Radhisha Akhil is my identity. Basically, I'm Rastogi, but it's identity. So I would love to introduce myself. So my name is Radhisha Akhil, and I was into hospitality, and then I have done my MBA, and then afterwards I'm into HR and learning and development. I basically train people, and also I'm a people-oriented person, so advising as well. Apart from that, I'm into PL. I have a own business of along with my family. It's an ancestors business, like more than 100 years old, which is known brand of jewelry. It's PL Jewelers and Girdhari Lal Inda Prasad. One is in Alambag and one is in Chowk. Apart from that, I recently launched a baby which name is Kira. 9 to 5 is That's Sterling. great. So yeah, so right now I'm on it. So that's all from my side. Thank you. और हमें आज यहाँ आके पता लगा जब हमने अपने मेहमानों को बुलाया कि यू बोथ आर फ्रेंड्स। Yes. तो कैसे आप लोग, मतलब कब, कितनी पुरानी दोस्ती है ये, पहले हम इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। I'll start. Okay, so basically, there's also one of our friend. She's a mediator actually, Bhilasha. So we met in nail lashes. So we were getting nails basically. So she introduced us. So we were like okay, and then हम तीनों बैठे थे, हमारे बीच बात हुई. She has a brand of this salon basically, and she has this textile, and I have jewelry. So we said, why can't we, we do a collaboration kind of thing. So we basically plan our shoots. So the outfit is from my brand, and the jewelry comes from her brand, and the makeup and everything comes from women her. empowering women. So, yeah, basically. so that's how we become friends, and we started doing chit chatting, and we got into our lives also, मतलब each other lives. हम एक दूसरे की family को भी जाने. So this is how basically it grew. And eventually जब क्लिक करता है कुछ साथ में, then you become friends. So बिल्कुल, something कहीं ना कहीं केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, something in कहीं ना common. कहीं एक We इक्वेशन मिलनी चाहिए। we have some ambition, हम तीनों को है कुछ की, we have to do something different. So because some or the other way, I believe every woman struggles to reach some level. Like they have to cross सारी चीजें करके एक लेवल पे वो आते हैं. तो सबने, इन्होंने भी कुछ स्ट्रगल किया, मैंने भी, आपने भी किया होगा फॉर श्योर. तभी हम यहाँ पे जो भी है छोटा सा ही कुछ भी कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर ऑन समथिंग. बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी, वो सारे दर्शक ज़रूरी नहीं है कि वो महिलाएं ही हैं
जितने दर्शक महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े, जितने भी हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए देख पा रहे हैं और हमारे मेहमानों को देख पा रहे हैं, वो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि हम अब आगे उनकी जर्नी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, भाव्या पहुँची हैं, राधिशा पहुँची है, आखिर क्या उनकी जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि दे आर द टीन्स एक्चुअली। मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब मेरे पास एक छोटा सा पैकेट में इतना बड़ा गिफ्ट आने वाला है। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम की जब शुरुआत करी थी कि नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सही बात है, सारी महिलाएं, मुझे लगता है 16 कला से भी ज़्यादा कलाएं अगर होती होंगी तो उनसे परिपूर्ण होती होंगी। तो आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे कुछ बताइए। सो बेसिकली मैं इंजीनियर तो बहुत पहले से ही हूँ, आफ्टर बिफोर माई मैरिज। सो आई वॉज वर्किंग इन नोएडा बिफोर। शादी हुई था, आई टुक माई ट्रांसफर टू लखनऊ। उसके बाद धीरे धीरे आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन टू द फैमिली बिजनेस, बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर तो मुझे ऐसा लगता था वी शुड हम इसको ऑनलाइन भी करें एंड देन वेबसाइट क्रिएट करें। सो दैट इज़ हाउ मैं इस चीज़ में आई धीरे धीरे धीरे। एंड फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई देन आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। तो उसके बाद आई वेंट इनटू दिस वेलनेस कम्युनिटी। सो मैंने वहाँ से वेट लॉस किया एंड देन वहाँ से मेरा मतलब फिटनेस जर्नी आई वुड से कि इट वॉज ऑलवेज देयर, क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा देखा है, माई मदर एंड माई फैमिली इज इनटू फिटनेस। सो वो था हमेशा से। बट जब आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं यू फील लाइक हाँ प्रेगनेंसी के बाद एंड यू लाइक कि बस नहीं यार, मतलब पहले कपड़े नहीं आ रहे, पुराने ब्लाउज नहीं आ रहे, क्या करें, मतलब यू डोंट फील गुड योरसेल्फ, मतलब कपड़े नहीं आ रहे। भाई लड़कियों का तो सबसे पहले कहीं से ही पता लगता है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें टेलर ही बताता है कि भाई इंच लॉस करने का टाइम आ गया है। मतलब फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आई गॉट इनटू वेलनेस। फिर मैं यहाँ से कनेक्ट हुई, यहाँ पे से भी मुझे बहुत मतलब आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प। मतलब इट हैज हेल्प मी, मतलब इट हैज हेल्प मी बॉडी टोनिंग में, मुझे यहाँ पे बहुत हेल्प आई वुड से। भाव्या, मैंने आपको थोड़ा सा फॉलो किया हुआ है इंस्टा पे। मुझे लगता है आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग, हाँ, मतलब आई लाइक ब्लॉगर भी हो आप या ब्लॉगर क्या, मतलब इवेंचुअली धीरे धीरे कंटेंट हुआ, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते गए। सो आई एंजॉय डूइंग दैट टू। वो भी एक पार्ट है मेरा, डिजिटल क्रिएटर यू वुड से। सो मतलब आई लाइक टू क्रिएट न्यू थिंग्स। सो जिसमें क्रिएटिविटी होती है वो सीड कहीं ना कहीं ग्रो होता ही है। ऐसा मुझे मतलब मेरे ख्याल से आपको भी ऐसा ही मानना होगा। राधिशा, बहुत खूबसूरत सा नाम आपने बताया अपनी ज्वेलरी का, और बिना नारी, बिना श्रृंगार के, बिना गहनों के अधूरी भी लगती है। तो कीरा के बारे में हमें कुछ बताइए कि कीरा क्या है जो आपने नाम लिया अपना स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड का। So basically my husband name is Krishna and my name is Radhisha. Yeah. So it's like so I take it key from Krishna and R from it. So we have all the like silver, diamond and gold like in our like ancestors business. But I thought why don't I मतलब why shouldn't I मतलब तो मैंने कीरा launch करा. It's been only 3 days. I just made and all the shoots and everything is done by मोटिवेशन थे इनके कीरा में कुछ is done by I actually took an advice कि Baba I'm planning this. What should I do? She said go for it. But like she said and Blush and or more of my friends. मतलब she wanted to do something in life. So she was मैंने कहा why not do something which belongs to you, to your family. My other friends family also give this the same advice. So I was like why should I take it? And then I was like कि ठीक है अपना job चल रहा है, अपना this business का भी चल रहा है, फिर let's do something on your own. बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए आपके पास ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ अर्न करने के लिए कोई चीजें करनी होती हैं. It's not about earning. It's not about making money. And most importantly, it's a 9 to 5 sterling silver. So like there are other competitors which is known brand like Jiva and all. But my focus is something which quality and plus it should reach to the economical also. Yeah, it should reach to the middle, lower and every kind of a class. So it's like it's basic. I think basic need because working women के लिए तो वैसे भी sterling jewelry and थोड़ा सा delicate jewelry they like the most I think because as a fitness freak भी या fitness woman भी मुझे लगता है I can't carry heavy jewelry, heavy rings. The diamonds also you cannot carry. So sterling silver is also like it's a pure 9 to 5 silver. So it's like people can go for it. बोलते हैं ना खो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं.
सही बढ़िया. And we can change the jewelry ना frequently, है ना? frequently change कर सकते हैं. Because we can keep मतलब on changing. eventually अगर आप Yeah. देखो तो जितना भी हमारा ये है गोल्ड है, ये लॉकर्स में ही रहता है बिल्कुल, mostly. बिल्कुल. निकालने का नंबर आता है इतने, हाँ. तो फिर लगता है बैंक जाए निकाल के लाएं. बिल्कुल. मैं अपने दर्शकों को यहीं पे बताना चाहूंगी कि अगर इस प्रोग्राम के बाद आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट जगे कीरा के पास जाने का, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे जरिए हम आपको बिल्कुल कांटेक्ट नंबर दिलवाएंगे मैम का, और आप आगे इनसे जो है जुड़े रहेंगे इसी बहाने, ताकि जो है हमारा भी कोई कुछ ना कुछ इनसे कनेक्शन बना रहेगा. और बिल्कुल विल बी द आई थिंक फर्स्ट कस्टमर, है ना? तो जर्नी के बारे में आप बताइए कुछ, यहाँ तक कैसे, कीरा तक कैसे पहुँचे. और उससे पहले बिकॉज आपने बताया कि आपका HR वाला था, फिर लाइक basically I was into hospitality, so I've done HM, like so HM I got top 1000 rank in it. Oh, very so good. I can go into any HM, so Nice. but I did it from this IHM Lucknow near Aliganj only. Okay. So then I did my training, and afterwards I got management training. It's a basic, like, you within a 1.5 year you will become an assistant manager. So I was with Mahindra first, associated, and then I was with Hyatt chains, and afterwards I got married. And after I got married, I was not doing anything. So it was like, so I got into my belongs to family. Lucknow? You belong to Yeah, Lucknow? born and brought up here only. Okay. So I got into family business. So there was also little bit like, you know, how come, like थोड़ा समझना था ये वो. Then I was planning to do MBA before marriage only. So I did my MBA, and to be honest, I topped in HR. Oh, very So good. after that, my mother-in-law supported me a lot in throughout this journey, and then I got a job offers basically, but I cannot move out of Lucknow. So I am into HR and learning and development. So basically I do train people, I provide them knowledge, and even I do advise people if they get into something, you know, some situation mentally and all. So I Achha, also do that's advice good. in that Very as good, well. very good. So that is a part of my of my own key. I need to help people. Basically I just want nobody should feel sad. Everyone should be happy. That's what I think from my side. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो हैप्पी पीपल होते हैं, वही जो दिल से खुश होते हैं, जो मन से खुश होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छा होती है कि उनके और उनके अराउंड भी सारे लोग खुश रहें. So yeah, right. Oh. So I got into my job, and then so I was into my family business as well. So I was helping out my husband as well, and then I thought, why not to introduce Kira? Very So nice. with all these things, that's why I introduced Kira. So all the supports from my husband and my mother-in-law, like my father-in-law was also there, but yeah, I got support from them. तो कीरा के बारे में तो हम और जानेंगे. अभी मुझे थोड़ा सा क्लोथिंग और साड़ीज पे इंटरेस्ट आ रहा है. तो द्विवेदी साड़ी तो एक फेमस ब्रांड है लखनऊ का. हम खुद भी परचेज कर चुके हैं वहाँ से पहले, पर मुझे नहीं पता था कि लखनऊ इतना छोटा है, कोई मिल ही जाएगा द्विवेदी साड़ी वाला. कुछ बताइए आपने कैसे उसको मैनेज किया, और कैसे आपको शौक आया, या कैसे आपका कुछ इंस्पिरेशन था. कुछ द्विवेदी साड़ी के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को इंस्पिरेशन यही था कि आई वांटेड टू, मतलब उसको मैं कुछ चाहती थी कि बिकॉज नाउ डेज आप देख रहे हो हम लोग भी बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ये सब करते हैं. सो आई वांटेड कि मतलब बिजनेस है, पुराना है, ऑब्वियसली नोन नेम है, तो आई वांटेड कि हम इसको कुछ कहीं मतलब वी शुड टेक इट टू अनदर स्टेप. सो थोड़ा सा आजकल इंस्टाग्राम आप ये सब देख रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग और ये फेसबुक एंड ऑल, आजकल इस सब का बहुत मतलब उसके बिना उसके बिना business कुछ नहीं है. हाँ. टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग हैव चेंज्ड अब यहाँ पे. तो इसी से ही आई गॉट इनटू दिस. फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया. एंड भाई देखिए साड़ी एंड एवरीथिंग ये तो जो है मतलब हर लड़की को ही मतलब ये सब अच्छा लगता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है. हाँ, क्लोथिंग, लहंगा, साड़ी, एवरीथिंग, मतलब ये तो हमारा आई थिंक प्राइड ऑफ इंडिया है. साड़ी eventually pride of India. एंड इफ यू सी आप देख रहे हो वहाँ पे, सो इट इज समथिंग दैट दिस बिजनेस इज लाइक यू वुड से कि मतलब इट्स अ गुड बिजनेस. इट्स लग्जरी जो बोलते हैं इसको, लग्जूरियस बिजनेस है. मार्केट सेगमेंट आपकी सारी रही, आप लग्जरी भी रखते हो, हाँ. आप मिडिल क्लास, मतलब लाइक सारी सेगमेंट्स को आप कवर करते हो. हम रखते हैं 200 रुपए से साड़ी, 200 रुपीज से लेके, So everyone can get, everyone can get. So and you go there, you meet a lot of people, you get contacts done. So मतलब it gives you another level of क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करने का हमें एक ऑप्शन मिलता है, चांस मिलता है. Different kind of people meeting. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उसके अलावा लहंगा भी
रखते हैं हम लोग, सूट्स रखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट All the segments तो of सारी the रेंज women, है, एंड range. इनफैक्ट मेंस वेयर भी है, बेडशीट्स हैं, होम फर्निशिंग है, सो वी कीप एवरीथिंग, ऑल्दो नाम द्विवेदी साड़ीज है बट वी कीप एवरीथिंग. Okay. So apart from sarees, we have everything. So You should So see how our you shoot. manage all the things, like you explore everywhere and you run your business. You are a wellness coach also. तो कैसे manage करते हो आप सब कुछ? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि when there is a will there is a way. तो अगर आपने कोई चीज़ मन में सोची है तो आप उसके लिए इवेंचुअली टाइम निकाल लेते हो. आप सुबह जल्दी उठोगे, Like, कहाँ से किट मिलता है आप दोनों को अपना करना? कुछ एक होता नहीं कि हमें एक किट मिलना चाहिए. जैसे मुझे एक्सरसाइज कराने में एक किट मिलता है. लाइक आई लव फिटनेस एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को फिटनेस करा रही हूँ तो मुझे किट मिल रही है. I want to तो say कुछ तो एक right ऐसा now point होता C3. है. See, basically C3 में before I was not able to come like on a regular basis, but once I started, no, I got relaxed, to be honest. Okay. By doing your the center near to this Sushant Gold City Yeah. you have, Yeah. I well, like eventually I wasn't a regular customer, still I'm not, but whenever I come I get relaxed. Okay. Because it's the way you people make us do, we laugh also, we do things as well, so that's something also helped us. I'm not saying कि मैं अभी यहाँ पे C3 को कर रही हूँ, but it's a genuine thing. And apart from that, time manage करना पड़ता है. It's like आपको morning like I also wake up by 7 o'clock and then do my things and then like off Like to you the have to be office. organized, ना, well Yes. managed. Sometimes अगर देखा पता है जाए तो. भसड़ हो जाती है. हो जाती है, obviously. All this हाँ. हो जाता है कि अरे कैसे कैसे sometimes you get irritated, but this is a part of life. But आपको जब eventually कोई चीज़ डन मिलती है ना कि हाँ ये चीज़ हुई, ये मैंने करी, तो आपको हैप्पीनेस भी अलग लेवल का आता है. सेम, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा राधिशा, क्योंकि कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइक आई हैव टू मैनेज बोथ माई सेंटर, माई फैमिली, इवन माई सेल्फ. कुछ मेरा मी टाइम भी होना चाहिए. exactly. और कभी जब बहुत सारा ऐसा होता है कि लाइक एट द एंड ऑफ डे जब मुझे लगता है कि इट वाज अ गुड डे, आई फील हैप्पी, आई स्लीप लाइक Exactly. मजा आया. वही happiness है. वही That is so true ना. happiness. And वही और kick है. नहीं because तो- family expectations is also हाँ. there. You हाँ. need to take care of them as well, or some or the other way you need to meet their expectations. So all the things are there aligned. So मुझे लगता है अगर आप टाइम को, अपने दिन को प्रॉपरली मैनेज करके चलो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. Yes. हाँ, थोड़ा सा होता है बीच में कि नहीं, कभी आप ऐसे फंस जाते हो कि मैं ये करूँ या ये करूँ, बट इवेंचुअली मुझे लगता है थोड़े टाइम के लिए सोचो एंड यू विल फिगर आउट. just prioritize your work. निकलता है. Like this task needs to be done पहले, फिर ये धीरे धीरे ये कर लेंगे. तो वी जस्ट नीड टू प्रायोरिटाइज आवर वर्क बेसिकली कि ये चीज इंपॉर्टेंट तो हमें ये पहले करना है, ये चीज बिल्कुल. इंपॉर्टेंट अपनी प्रेफरेंसेस को पहले चुन लें. हाँ. कि जैसे आज आपको कल अपना दिन मैनेज करना है तो व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस फ्रॉम, मतलब व्हाट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, है ना. तो उसके बाद आई थिंक सब चीजें इजीली मैनेज हो जाती है. आई कैन कोरिलेट द थिंग्स विद बोथ ऑफ यू कि कैसी चीजें हम लोग को मैनेज करनी होती है. तो सारा अपना सब कुछ बिजनेस रन करते हुए कभी कभी कोई ऐसा दिन भी आता है कि जिस दिन आपको लगता है कि मी टाइम में आप क्या करते हो और उसको कैसे आप एंजॉय करते हो. लाइक जैसे हमने बोला कि किक मिल रही है हमको अपने प्रोफेशन से, है ना, वो किक तो मिलती रहती है. फिर भी कोई ऐसा टाइम जिस दिन आपको लगता है कि नहीं ये करके मुझे आज तो मज़ा आने वाला है. लाइक आई लाइक डांसिंग. लाइक मुझे लगता है मेरे घुटने भी खराब हो जाएंगे तभी मुझे डांस ऐसी पसंद है कि मैं हर वक्त मतलब आई कैन डांस एनी टाइम, आई कैन डांस. तो आई कैन डी स्ट्रेस माई सेल्फ विद डांस. कुछ ऐसा कोई ऐसी टाइम चीज. के लिए मेरा तो एस्केप होता है कि कहीं थोड़े दिन घूमने चले जाओ, Right. ट्रैवल कर लो. तभी That आप कह रहे means हो मैंने travel सही आपको पसंद है. follow मुझे लगता है कि कहीं निकल जाओ, 2-3 दिन का हाँ. ब्रेक लो आराम से. हाँ. वहाँ This- कोई काम this नहीं, is कुछ really- नहीं. क्योंकि पीस ऑफ माइंड भी तो बहुत हाँ, जरूरी है. exactly. कहीं ना कहीं एक That's what I am so much into traveling basically. मेरे को भी traveling करना बहुत पसंद, but just because of the work and husband and family. Before marriage, I used to travel every month. You won't Okay. believe. But afterwards, because the work and everything सब different हो जाता है ना, सारी चीजें change हो जाती है, and you also get into motivated some other thing, into some other things. तो वो चीज़ें, बट फॉर मी इट्स लाइक समटाइम्स गाने अच्छे सुन लो, अगर टाइम कम है ट्रैवलिंग के लिए नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत डांस कर लो या मसाज ले लो. अरे वाह. मतलब वो भी मेरी नहीं हो पाती है, टू बी ऑनेस्ट. महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं हो पाती, बट एक बार मसाज ले लो तो बहुत रिलैक्स लगता है. सही बात है. सबके अपने को कि वो मी टाइम में कुछ ऐसी चीज Yeah. जो सही बात है, हमें पीस ऑफ माइंड एंड पीस रिलैक्सेशन बॉडी का भी मिल जाए तो वो ज़रूरी है. तो बहुत सारी बातें और भी मुझे करनी है, लेकिन कुछ आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़, कुछ आपकी लाइफ जैसे मैं आप एज नहीं पूछना चाहूँगी, है ना. ऐसे कोई ऐसा
okay, we're not that kind कभी of- कोई ऐसा समय आया, बिकॉज अभी तक हमने जितनी बातें करी वो सब ठीक है, हमारा हम इंस्पायर हुए, हमने एक जर्नी रखी, हमने मैनेजमेंट किया, डिसिप्लिन रखा, या वी मैनेज, वी ऑर्गेनाइज एवरीडे। कभी कोई देखो टाइम ऐसी चीज है जो ऊपर नीचे होता रहता है। क्या आप दोनों की लाइफ में कभी कोई ऐसा समय आया जब ऐसा लगा कि नहीं अभी इसके आगे सब कुछ खत्म हो गया, या अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, कुछ ऐसा कि फिर आप उसमें से निकल कर आए, कुछ ऐसा एपिसोड जो आप शेयर करना चाहें, ताकि वो दर्शक जो आप हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी कहीं ना कहीं से एक कुछ होता नहीं है कि अंधेरे में रोशनी की किरण जैसा कुछ के साथ है। देखिए हाइज एंड लोज तो किसी की भी लाइफ एकदम हाई पे नहीं चल सकती और किसी की भी एकदम ऐसे नहीं। सो मतलब हाइज एंड लोज आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे तो लगता है, एंड होता रहता है, समथिंग कम्स अप एंड मतलब आई थिंक दैट्स अ To be पार्ट ऑफ honest, लाइफ। she has also like done her things in life, and I appreciate her like every time the way she revolved herself, the way she does things. It's literally मतलब Inspirational, हाँ, इट्स अ मतलब पार्ट ऑफ लाइफ। आप ये सोचो कि मतलब कुछ भी इजीली नहीं मिलता है, यू हैव टू वर्क। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बट ये कि आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता है कि इट्स ओनली यू हु कैन कम आउट ऑफ इट। आपको खुद ही है, मतलब आपको खुद ही करना पड़ेगा, नोबडी कैन डू इट फॉर यू। हाँ, आपको खुद ही उसको फाइट करना है, खुद ही आपको उसको समझना है, खुद ही आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप किसी को बता के अपने दिल की बात सिर्फ हल्का कर सकते हो, they are not going to solve for you. हाँ, बट उसका सोल्यूशन तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल मिलता है जब हम ये दिमाग में दिल में अपने ठान लेते हैं कि जैसे आपने बोला, आपने भी यही बात बोली कि हमें अकेले भले ही सबके साथ चलना है, लेकिन आखिर वो ठानना खुद है, डिटर्मिनेशन खुद का होना चाहिए अगर आप खुद कि हमें उसमें से निकलना है। अगर आप खुद नहीं हैप्पी रहोगे तो दूसरों कैसे रखोगे? एंड दैट विल शुड कम फ्रॉम यू बिल्कुल इनसाइड। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बचपन में मैंने सुनी थी, शायद आपने भी सुनी हो, कि दो मेंढक थे, एक शॉर्ट स्टोरी बीच में, दो मेंढक थे, वो गलती से एक दूध के उसमें गिर गए थे, पैन में गिर गए थे। उसमें से एक मेंढक को लगा कि मुझे तो कोई ना कोई निकाल ही लेगा, तो मैं रुका रहता हूँ, लोग इधर देख रहे। दूसरे मेंढक ने घूमना शुरू किया, ट्राई, मक्खन आ गया, वो ऊपर आ गया और वो कूद के बाहर निकल गया। और वो जिसने सोचा हुआ था कि वो नहीं निकल पाएगा, वो उसी पे डूब के मर गया। दैट मीन्स पीपल कैन हेल्प यू, बट जो कूदना है, वो जंप मारनी है, वो आपको खुद ही मारनी पड़ेगी। और मुझे लगता है विल पावर आपके अंदर, आपका डिटर्मिनेशन है, वो आपका विल पावर है। बिल्कुल। आप किसी से सुन लोगे, आप उसकी बात मानोगे, आपके दिमाग में सिर्फ एक दिन तक रहेगी, बट आपको कोई चीज जो फॉलो करनी है 1 महीने तक, वो अगर आपके अंदर खुद नहीं है तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता उसमें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है। और इसी बातों के साथ अब मैं एक चीज और आप दोनों से अलग अलग पूछना चाहूंगी कि जैसे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ में अभी तक में जितने भी हाईज एंड लोज आए हैं, या जो भी आप मैनेज करते हो अपने डे को, या अपनी लाइफ को, या अपनी पर्सनल या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ ऐसा क्या निकल कर आता है जो आप कन्वे कर सकते हो हमारे दर्शकों के साथ, जो हमसे जुड़े रहते हैं हमेशा, या हमारे क्लाइंट्स के साथ इवन? मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक मुझे चीज़ मैंने ये सीखी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि कहते हैं ना सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। सो आई वुड से कि आप जो भी है, मतलब हेल्थ शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। अगर आपकी आज एक उंगली में भी कुछ थोड़ा सा भी दर्द हो जाता है, पूरे दिन उसको पकड़ के बैठे रहते हो कि मतलब अरे यार इसमें दर्द हो रहा है, अब क्या करें, आधा काम नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे जो अच्छी वो करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें जैसे कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें आप ट्राई करो कि मतलब उसे छोड़ो मत बीच में, उसमें आप कंसिस्टेंट रहो। एक वो है बहुत अच्छी स्टोरी है, बोलते हैं कि सीड्स आपने सो करें तो क्या है कि 3 साल तक वो अंदर है, बट 3 साल तक आपको उसको रेगुलरली वाटर करना है, ठीक है। पर 3 साल बाद वो बैम्बू का पेड़ निकलता है, वो इतनी तेज ग्रो करता है, तो आप इवेंचुअली, आपको पता नहीं है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, नीचे नीचे वर्किंग हो रही है, बट जब आप एकदम से ग्रो करोगे, जब आपका टाइम आएगा, देन आप एकदम पीक पे चले जाओगे उस चीज के लिए। सो इवेंचुअली आपको क्या है कि मतलब आपको काम करते रहना है, मतलब एक वो कहते हैं कि मतलब हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, और फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा, एंड वो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंसी इज द की है ना। किसी को थोड़ी जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ी देर से मिलता है, पर मिलता सबको। आप क्या बताना So चाहेंगे? I totally agree with Bhavya. So basically we discuss things like this as well.
But apart from this, patience, the way she said consistency, some or the other way it's a patience as well. Patience बहुत ज़रूरी है लाइफ में हर चीज़ के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ना खुद ही अपनी हर चीज़ के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा. सम और दी अदर वे मोटिवेशनल स्पीच देके किसी भी चीज़ देके, लेकिन आई नो एंड लोग बहुत ज़्यादा फॉल डाउन करते हैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा. तो बट उनको ये सोचना है, ये समझना है कि दे शुडेंट रेजिस्ट देयर सेल्फ कुछ करने के लिए, और अपने आप को कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाना है. उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि अपने आप को कुछ करना है. जैसे हेल्थ का इसने बोला, दैट इज ऑल्सो मेन थिंग. जब आप ठीक रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे. इफ आप ठीक नहीं रहोगे तो आप कैसे कुछ कर पाओगे? अपना बिजनेस ना पर्सनल कुछ नहीं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो हेल्थ है, एंड सेकेंडली यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ ऑन योर ओन. एंड वर्ड के लिए ना थोड़ा सा आई बिलीव सबको एम्पथाइज भी होना चाहिए. लाइक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. जो मेरे हिसाब से है, पीपल आर लाइक नॉट एम्पथाइज टुवर्ड्स अदर्स दीज डेज. सो अगर आप दूसरों को समझोगे कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, तो आप ना मन में ना प्रॉब्लम्स रखना बंद कर दोगे. जैसे होता है ना, पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद ईच अदर, ग्रजेस एंड समथिंग. बट आप ये सोचो ना कि उनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा होगा. व्हाट पीपल थिंक, इसने मुझे बोल दिया, बट जस्ट थिंक लाइक दैट ना, उसने बोला मे बी दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग. 1-2-3 बार तो आप ले सकते हो ना. बट अगर आपको लग रहा है कि दैट इज नॉट, देन मेक अ डिस्टेंस. बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट. वी शुड एम्पथाइज टुवर्ड्स ईच अदर. वी शुड help women, like in the sense empowerment is really necessary. Like we all three are here gathered together. So हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को, मुझे अच्छा लगा जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे आप चीजें कर रहे हो. आई एम रियली लाइकिंग इट. लेट मी टेल यू रजनी जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. सो मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा तो मन था कि मैं आपको बस देखूं और सुनती रहूं. मेरा भी मन करता है, तभी मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया. मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपना जो फील्ड है वो तो चलता ही रहेगा. दिस इज द हाई टाइम when I can do something for the people of Lucknow and for the people of, I think, for everyone. Right. And we need to understand men as well. That is the thing. That's all from my side. Thank you for having us. Thank you. Thanks for being here. और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा. दो इतनी खूबसूरत हस्तियों से मिलना, आई थिंक एवरी वुमन इज अ खूबसूरत हस्ती. क्योंकि हमने प्रोग्राम की शुरुआत ही वहीं से करी थी कि नवकल्पना नवरूप से. और जैसे कि आपने बोला कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच हो, कि मुझे आज ये बात करके मिला, मतलब जो मुझे एक आप लोग से बात करके समझ में आया कि हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रहनी चाहिए टुवर्ड्स लाइफ. हाईज एंड लोज, जैसे भव्या ने बोला, आपने बोला कि सबकी लाइफ में आती है. तो मैं एक लाइन के साथ इस प्रोग्राम को सम अप करना चाहूँगी कि जूते की कमी मुझे अखरती रही तब तक, जब तक मिला नहीं था मुझे एक इंसान बिना पाँव के. सो आई थिंक यू बोथ आर मोटिवेशन फॉर मी and for the people, for everyone, all the viewers जो हमें आज देख रहे हैं. बातें बंद करने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम हमेशा को ख़त्म करना ही होता है, इट्स अ फॉर्मेलिटी. सो अगेन मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी. थैंक यू वेरी मच अपना समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए. और फिटनेस में तो आप प्लीज़ हमेशा जुड़े ही रहिए C3 के साथ. बिल्कुल. और बिल्कुल हम इस तरह से अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे, और बिल्कुल जल्दी मिलेंगे कुछ और नए मेहमानों के साथ, नई स्टोरीज के साथ. तब तक के लिए जुड़े रहिए C3 ऑन एयर. थैंक यू वेरी मच.